Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. This is New Oxford Modern English, Book 7, Chapter number 11, The Hitchhiker. We have been completed with the reading and explanation along with question and answers, word meanings, and today we are going to do question and answers in this video. So watch the video till the end and hit the like button, subscribe to my channel, don't forget to share it with your friends. So Janab, question number 1. Part A says, which words in the first paragraph of this story tell us that the owner of the car is rich? Which words? We have to find out the words and we'll write the answer, we'll frame the answer as the words in the first paragraph of the story that tell us that the owner of the car is rich are or is. Okay? We have to find out the words from the first paragraph. So open up page number 128, paragraph number 1. Here you'll find all the specifications of the car that tells us it is an expensive car. A big BMW, then the genuine soft leather, electrically operated, and so was the sunroof. These are the specifications or the characteristics of a car that tells us that this was an expensive car. So we'll write the answer as the words in the first paragraph of the story that tells us that the owner of the car is rich are new car, big BMW, genuine soft leather, electrically operated both windows and sunroof. Okay? So these are the specifications, these are the words that are telling us that the car was expensive. Part B. Why does the driver stop for the hitchhiker? Part C. How does the driver describe the hitchhiker? Both of these questions are related to hitchhiker. First one, we have to give the reason, that what was the reason that made driver stop for the hitchhiker and how the hitchhiker looked like. ठीक है? ड्राइवर ने hitchhiker के लिए क्यों गाड़ी रोकी और hitchhiker दिखने में कैसा था. तो पार्ट बी का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा. I always stopped for hitchhikers. क्यों? I knew just how it used to feel to be standing on the side of a country road watching the cars go by. I hated the drivers for pretending they didn't see me, especially the ones in big cars with 3 empty seats. तो ये रीज़न था कि उसने हिचहाइकर के लिए गाड़ी को रोक लिया, उसको एम्पैथाइज किया, उस फीलिंग को सामने रखते हुए उसने गाड़ी रोकी कि जब मैं हिचहाइकिंग किया करता था तो मुझे कैसा लगता था जब ड्राइवर्स गुजर जाते थे और ऐसा शो करते थे जैसे उन्होंने मुझे देखा नहीं. So bus, the driver stops for the hitchhiker because he always stopped for them, thinking he used to hitchhike himself and hated it when drivers pretended not to see him. ठीक है, हम अपने वर्ड्स में थोड़ा सा प्रिसाइज करके क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल अब आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं तो आप चीज़ों को प्रिसाइज्ड वे में अच्छा सा करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं. उसके बाद वो हिचहाइकर दिखने में कैसा था, इसका आंसर पेज 129 पर आपको एग्जैक्ट पूरे पैराग्राफ में मिल जाएगा. He was a small ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever like a rat's eyes, and his ears were slightly pointed at the top. He had a cloth cap on his head, and he was wearing a greyish-colored jacket with enormous pockets. तो यहाँ पर सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और सारे फिजिकल फीचर्स और सारी चीज़ें जो है वो इसी हिचहाइकर की बयान की गई हैं. तो ये आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट आंसर हमारे पास मौजूद है. इट सेज व्हाई डज द ड्राइवर स्टॉप क्वेश्चनिंग द हिचहाइकर? ड्राइवर ने क्यों जो है वो सवाल करना छोड़ दिया? वी हैव टू प्रोवाइड द रीजन. पेज 129 पर ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा. आई डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन हिम एनीमोर. आई रिमेम्बर्ड हाउ इरिटेटेड आई यूज्ड टू गेट इन माई हिचहाइकिंग डेज व्हेन ड्राइवर्स केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस. आई यूज्ड टू hate it. ठीक है, तो आप इसी को रिफ्रेस करेंगे आंसर को और जैसे क्वेश्चन की आपकी वर्डिंग्स हैं उस वर्डिंग्स में आपने आंसर को अपने फ्रेम करके लिखना है. तो आंसर कुछ इस तरह होगा. द ड्राइवर स्टॉप्स क्वेश्चनिंग द हिचहाइकर बिकॉज ही रिमेम्बर्ड हाउ इरिटेटेड ही यूज्ड टू गेट इन हिज हिचहाइकिंग डेज व्हेन ड्राइवर्स केप्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस. ही यूज्ड टू हेट इट. सिर्फ प्रोनाउंस हमारे चेंज हो रहे हैं. वहां पर वो क्योंकि जो ड्राइवर है वो खुद नरेट कर रहा है तो आई करके यूज कर रहा है. क्वेश्चन आपसे ही करके पूछा गया है तो आपने प्रोनाउन को चेंज कर देना है. Next we have part E. What reason does the hitchhiker give for thinking that the driver was a good writer?
तो ये मैंने आपको स्टोरी जब एक्सप्लेन कर रही थी उसमें भी बताया था। आपने अगर वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लीजिएगा, कि उसमें हमने ये रीज़न बताया था कि हिच हाइकर ने क्यों उसको लगा ऐसा कि ड्राइवर एक अच्छा राइटर है। So the answer is the hitchhiker's reason for thinking that the driver was a good writer was that he was driving an expensive car that he would not be able to afford if he was not successful in his work. उसने क्या कहा था कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव कार रखी हुई है, अगर तुम एक अच्छी इट मस्ट हैव कॉस्ट अ टाइडी पैकेट, यानी कि ये जो गाड़ी है इसकी अच्छी खासी प्राइस होगी कि तुम कैसे अफोर्ड कर पाते अगर जो है वो तुम अच्छा राइटिंग से अपनी ना कमा रहे होते। Next is part F. How does the hitchhiker manage to coax the driver into driving faster? उसने किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से उसको प्रोवोक किया कि ड्राइवर अपनी स्पीड को 129 माइल्स पर आवर तक लेकर चला जाए। तो कैसे उसने उसको प्रोवोक किया था, क्वेश्चन की ही जबान में हम आंसर लिखेंगे। hitchhiker manages to coax the driver into driving faster by asking what she can do flat out, यानी कि वो गाड़ी कितना तेज जा सकती है, एंड देन एनकरेजिंग हिम टू प्रूव दैट इट कुड एक्चुअली गो एट 129 माइल्स पर आवर। जैसे हम किसी को उकसाते हैं ना कि अच्छा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके तो दिखाओ, तो वो बंदा क्या होता है चौड़े में आके कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, और फिर वो उसको करने की धुन में लग जाता है। तो यहाँ पर भी उस ड्राइवर के साथ हिचहाइकर ने यही किया। Next we have part G. Why is the hitchhiker reluctant to reveal his profession? क्यों भाई अपना प्रोफेशन बताने में इतना रिलक्टेंट क्यों था, क्यों इधर उधर की बातें कर रहा था और साफ साफ अपना प्रोफेशन नहीं बता रहा था हिचहाइकर? क्योंकि उसको एक फीलिंग आ रही थी कि कहीं ये ड्राइवर सादे कपड़ों का पुलिस ऑफिसर ना हो, इसलिए। पार्ट H. Why does the policeman decide to question the hitchhiker too? रीजन बताइए कि पुलिसमैन ने हिचहाइकर से क्यों इंटरोगेशन स्टार्ट कर दी, जबकि ड्राइविंग तो ड्राइवर कर रहा था, उसका क्या ताल्लुक था? तो जनाब इसलिए शुरू कर दी क्योंकि वो ड्राइवर तो नहीं था लेकिन वो एक विटनेस था, गवाह था, इसलिए। And then part I says, how did the fingersmith first impress the driver with his skill? तो ये जो फिंगर स्मिथ कोई और नहीं है, वही हिचहाइकर है जो बाद में फिंगर स्मिथ रिवील हुआ कि उसने सबसे पहले ड्राइवर को कौन सी अपनी स्किल से इम्प्रेस किया था। तो अगर आपको याद हो स्टोरी के बीच में हमने पढ़ा था, द फिंगर स्मिथ फर्स्ट इम्प्रेस्ड द ड्राइवर विद हिज स्किल एट रोलिंग अ सिगरेट वेरी क्विकली। जब उसने सिगरेट को घुमा घुमा के जला के उसको दिखाया था, तभी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, बहुत जो है वो उसकी स्किल को देख के इम्प्रेस हो गया था। नेक्स्ट इज पार्ट J. Why does the hitchhiker call himself a fingersmith? वो अपने आप को फिंगर स्मिथ क्यों कहता था, जबकि वो था तो एक पिक पॉकेट, एक जेब कतरा, तो उसने अपना नाम फिंगर स्मिथ क्यों रख लिया था? एंड डिस्क्राइब हाउ द फिंगर स्मिथ डेमोन्स्ट्रेट हिज स्किल टू द ड्राइवर। और ये भी बताइए कि फिंगर स्मिथ ने ड्राइवर के सामने अपनी स्किल्स का कैसे शो पेश किया, कैसे उसके सामने मुजाहिरा किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास बुक में मौजूद है। द हिचहाइकर कॉल्ड हिमसेल्फ अ फिंगर स्मिथ बिकॉज ही फेल्ट दैट द वर्ड पिक पॉकेट वॉज वल्गर। पहली बात, also he was an expert, a professional with his fingers, so he used to call himself a fingersmith instead of pickpocket, like the experts of gold and silver are called goldsmith and silversmith because he was expert in his fingers, doing something with his fingers, so he called himself a fingersmith. तो आप इतना जवाब भी लिख देंगे, it's enough for you, ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कैसे पेश की, तो द फिंगर्स में डेमोन्स्ट्रेट हिज स्किल टू द ड्राइवर बाय रिमूविंग द ड्राइवर्स बेल्ट, शूलेस एंड रिस्ट वॉच विदाउट हिम नोटिसिंग। ठीक है, ये तीन चीजें उसकी जो है वो नजरों के सामने बगैर उसको पता लगे उसने निकाल ली, और ये तीन चीजें निकालकर उसने अपने स्किल का मुजाहिरा किया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज A comprehension, and for the rest of the questions inshallah I'll make another video, so stay tuned, take care, Allah Hafiz.